आप किसी स्कूल में पढ़ाने चले गए, टीएलएम का यूज करते हैं हम लोग पढ़ाने के लिए, वहाँ पे टीएलएम नहीं है, आपने प्रिंसिपल को प्रोवाइड कराने के लिए बोला, वो नहीं करा पा रहे हैं, इलाका भी ऐसा है कि आप खुद भी नहीं खरीद पा रही हो, क्या करेंगे फिर आप उस Can I take a moment, please? आपने एनसीएफ में ये जाना होगा कि पहले बिहेवियरिस्ट अप्रोच का इस्तेमाल किया जाता था, व्यवहारवादी तरीकों का इस्तेमाल किया जाता था, उसका कुछ उदाहरण दे सकती हैं क्या होता था क्लास में, कोई एक ऐसा एग्जाम्पल कि सर ये तरीका होता था बिहेवियरिस्ट अप्रोच का। Can I come in? Good morning, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening, sir. Good evening, ma'am. Good evening, sir. Good evening, ma'am. Right. Thank you. Introduction. Ma'am, my name is Soumya Chauhan. I am from Badaयूं, Uttar Pradesh. I have done my graduation from MJPRU and then I did my diploma. I like to listen to music sometimes. And my strengths are that I am an optimistic person, I am empathetic and compassionate. That's all about myself. So, सौम्या चौहान, Yes, sir. आपने अभी रिसेंटली नाम सुना है शिवा चौहान? कौन है, क्यों सुना है न्यूज में? Shiva Chauhan? हाँ, पूरा नाम बता देता हूँ, कैप्टन शिवा चौहान। No, sir, I'm not Okay, aware okay. of it. अच्छा, Sorry. आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है 4th जुलाई है, तो 4th जुलाई वर्ल्ड की किस कंट्रीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डे है? जैसे हमारे लिए 15 अगस्त है, 26 जनवरी है। Sir, USA. यूएसए का क्या है, क्यों? Sir, Independence Day. यूएसए का इंडिपेंडेंस, अच्छा यूएसए कब इंडिपेंडेंट बना हुआ था कंट्री? इंडिपेंडेंस कब मिली थी? Sir, actually, it was USA independent नहीं हुआ था. There were, I think, 13 nations that came together, and then USA was formed. Sir, I think 18th century में था. ओके ओके मुझे exact date नहीं याद है वैसे. ओके। सो आप बदायूं से हैं, तो बदायूं से रिलेटेड आपका एक बहुत फेमस कवि भी बोल सकते हैं, म्यूजिशियन भी बोल सकते हैं और पोएट भी बोल सकते हैं, वो कौन, क्या नाम बता सर, सकते शकील बदायूनी. हैं? हाँ इन्हीं जी, के नाम सर. पे पड़ा है। ओके। तो सौम्या, Yes, ma'am. आपने यहाँ लिखा है that you're an empathetic person. Yes, Could you ma'am. please differentiate between empathy and sympathy? Yes, ma'am. Sympathy means that you understand the pain of a person. Like, if I'm talking about a child, that you understand what he or she is going through. But when you talk about empathy, you put yourself into the shoe of that child and you feel that pain. So that is being an empathetic person. All right. And also in your bio, you've mentioned that through your empathy and compassion, you would like to solve the problems that children face. So, ये आप किन चिल्ड्रन की बात कर रही है? इज इट ओनली द स्टूडेंट्स जो आपको आपके केवी स्कूल में मिलेंगे, या आप ओवरऑल सोसाइटी के सब बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्व करने की बात कर रही है? नंबर 1। नंबर 2, ये प्रॉब्लम्स हैं क्या? आप किन प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर रही हैं यहाँ पे? Okay, ma'am. Ma'am, I'm talking about all the children, like including the children of KVS also, and including the children which I will be going to be in contact with. And ma'am, what was your second question? My second question was, what are these problems that you What are are the- addressing? Okay, ma'am. So, can I take a moment, please? Sure. Okay. Okay. So, during my diploma, there is an internship of 1 month in every semester. So I used to get into contact with a lot of children, and one of them was a girl named Roshni. She was still in my contact list. She comes from a poor family, so she used to come after school at my place for like so that I can teach her. So she was like, her family background was not so good. So basically, you want to teach to underprivileged students. Yes, ma'am, in a way. Right. Thank you.
जैसे केवीएस ने 2018 में अपने सभी इंटरव्यूज कंडक्ट किए थे, जिसमें उन्होंने अपने इंटरव्यू को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया था, जिसमें एक में आपका परिचय, आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते थे, जिसमें बीच में जीके के क्वेश्चंस भी डाल दिए जाते थे, साथ में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, आप कहाँ से आते हैं उससे संबंधित सवाल, ये सारी चीज़ें होती थी। अगर मैं दूसरे पार्ट की बात करूँ तो उसमें होती है कि आप जिस लेवल के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके किसी एक चैप्टर की डेमो टीचिंग। तो हमने भी उसी पैटर्न पर इन अपने सारे इंटरव्यूज को शूट किया है, जो कि आप देख पा रहे होंगे। और डेमो वाला पार्ट जो होता है, कई इंटरव्यूज में पहले पूछा जाता है, कई में बाद में पूछा जाता है। वो इंटरव्यू के मूड पे डिपेंड करता है। इंटरव्यू का जो टाइम होता है वो अमूमन 10 से 15 मिनट होता है, लेकिन हमने जब स्टूडेंट एक इतनी दूर से चल के हमारे पास इंटरव्यू देने आया तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा देने की कोशिश की, यानी हमने ये इंटरव्यू जो है 15 से 20 मिनट के रखे हैं। लेकिन जो जनरल एक एवरेज टाइम होता है केवीएस इंटरव्यूज का, वो होता है 10 से 15 मिनट। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अगर आप भी ऐसी ही तैयारी करना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि ऐसे ही आपका बढ़िया पैनल एक इंटरव्यू ले, रिकॉर्डेड वीडियो आपको बाद में मिल जाए जिसे आप रिव्यू कर पाएं, आप भी चाहते हैं कि आपके इंटरव्यू को पैनल रिव्यू करके आपको रिमार्क्स भी दे, वो भी आपको वीडियोस में मिल जाएगा। तो अगर आप ये सारी ही चीज़ें चाहते हैं तो आप भी हमारे केवीएस मॉक इंटरव्यू के बैच में एनरोल कर सकते हैं, और इसकी ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह जाए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, उस पे जाकर भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। टीम आपसे अपने आप कनेक्ट कर लेगी। बेस्ट ऑफ लक आप सभी को आपके केवीएस के इंटरव्यूज के लिए। Soumya, Yes, so ma'am. being an empath is very trending these days. That means you understand the problem of an individual while putting oneself into the shoe. Could you please tell me, if a student is disabled and has some anger management issues, how would you like to deal with the same, and by using the empathetic quality of yours? Okay, ma'am. So first of all, I would know the root cause of the problem of, in this case, anger. So I would ask him or her about like what is the root cause, why are you getting angry about it, and then I will think about it and I will try to solve it. Maybe I will talk to his or her parents also about the problem, and like, together with me and his or her parents support, I can solve his or her problem. And Okay. being an empathetic person, I would put myself into that same situation, and then I would decide that okay, what would I have done if I was in his place, in his or her place. So would you spoil your day thinking about the issue? No, I don't think so, ma'am. It won't spoil my day. It would give me happiness if I'm in the end, if I'll be able to solve his or her problem. And So- what if the student has come up and has ingrained the anger management issues from his or her parents? How would you deal with that? Like if a student has angry parents. Okay, ma'am. So there are counseling experts also. So I would suggest his or her parents also for like counseling to go through the sessions and all. Okay. So do you read newspapers? Not really, ma'am. Thank you. जिससे आपने बताया कि भाई आप एम्पैथी, सिंपैथी, ये बहुत सारी चीजें आपने भारी भारी वर्ड यूज किए हैं, तो क्या आपको लगता है मतलब कि जो जैसे कि अगर हम स्टूडेंट्स के उस मतलब खुद को स्टूडेंट की जगह पर रख के देख के सोच रहे हैं तब हमें पता चल रहा है, लेकिन मान लिया आपकी क्लास ऐसी है कि कोविड वाली सिचुएशन आ जाती है और आपको ऑनलाइन घर से पढ़ाना पड़ रहा है और आप नहीं स्टूडेंट से कनेक्ट हो पा रहे हो, तब कैसे पता चलेगा? सर स्टूडेंट्स, अगर मेरी बॉन्डिंग उनसे इतनी अच्छी हुई तो हो सकता है वो शेयर करें प्रॉब्लम. इट्स अबाउट लाइक मेकिंग बॉन्डिंग विद स्टूडेंट्स. आई एक थिंक ऑनलाइन मोड के थ्रू आप कैसे वो बॉन्डिंग करेंगी, क्योंकि सिचुएशन आ जाती है 1 साल 2 साल क्लास ही नहीं चल पा रही है स्कूल में, वो कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, जूम वगैरह के थ्रू आप क्लास ले रही हैं, तब कैसे करेंगे? सर हर सेशन के स्टार्ट में जैसे हम लोग इंटरेक्ट कर सकते हैं स्टूडेंट से कि वो कैसे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, घर पे सब कैसे हैं, तो इसके थ्रू धीरे धीरे वो बॉन्ड डेवलप हो सकता है.
ठीक है। और अच्छा, जैसे आप किसी स्कूल में पढ़ाने चले गए, टीएलएम का यूज करते हैं हम लोग पढ़ाने के लिए, वहां पे टीएलएम नहीं है, आपने प्रिंसिपल को प्रोवाइड कराने के लिए बोला, वो नहीं करा पा रहे हैं, इलाका भी ऐसा है कि आप खुद भी नहीं खरीद पा रही हो, क्या करेंगे फिर आप उस स्थिति में? सर कुड यू रिपीट द क्वेश्चन? आप एक ऐसे स्कूल में हैं जहाँ पे आसपास आपको पढ़ाने के लिए जो भी शिक्षण अधिगम सामग्रियां चाहिए, लर्निंग मटेरियल चाहिए, वो आपको नहीं मिल रहा है, प्रिंसिपल भी आपके उसमें हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, तब आप उस स्थिति में क्या करेंगी? कैसे आप उस चीज को रिप्लेस करेंगी जब वो नहीं हो पा रहा है आसपास से? ओके सर जो भी आसपास अवेलेबल होगा उसकी मदद से कर सकते हैं। कोई नेचुरल, सपोज बाहर नेचुरल एनवायरनमेंट तो हर जगह होता है, तो उसकी हेल्प लेके, जो भी आसपास होगा मटेरियल उसकी हेल्प लेके हम कर सकते हैं। एक आपने एनसीएफ में ये जाना होगा कि पहले बिहेवियरिस्ट अप्रोच का इस्तेमाल किया जाता था, व्यवहारवादी तरीकों का इस्तेमाल किया जाता था, उसका कुछ उदाहरण दे सकती हैं? क्या होता था क्लास में, कोई एक ऐसा एग्जाम्पल कि सर ये तरीका होता था बिहेवियरिस्ट अप्रोच का? सर थोड़ा टाइम ले लो। हाँ, सर जितना मुझे याद आ रहा है शायद किताबों पे ज्यादा फोकस किया जाता था, मतलब क्लास उस पे। चलो सर मैं मुझे याद बता नहीं। देता हूँ। जैसे बिहेवियरिस्ट अप्रोच क्या होता है कि वो चीज आपके व्यवहार में लानी है, तो उसके लिए आपको बार बार वो चीज बुलवाना, ट्रायल एंड ट्रेनिंग, एरर। हाँ जी। ट्रायल एंड एरर नहीं कि वो आपको मॉक ड्रिल, वैसे आपको Drill। 10 सवाल करने को देना, आपको एक चैप्टर पढ़ने के बाद कह देना दोबारा और पढ़ लो, वो बिहेवियरिस्ट अप्रोच होगी। इसे किस अप्रोच से रिप्लेस किया गया था एनसीएफ 2005 में? अब क्या अप्रोच यूज की जाती है? कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। अच्छा, इसका कोई आप एक एग्जांपल दे पाएंगे? हम बच्चों को एक्टिविटी करके सिखा सकते हैं। अच्छा, आपने ये देखा होगा कि हम लोग जो हैं मैथ्स में परसेंटेज रेशियो सब 6th क्लास से शुरू करते हैं, इसका कोई रीजन है, स्पेसिफिक रीजन? 5th से क्यों नहीं स्टार्ट करते? 4th से क्यों नहीं करते? किस रीजन से चैप्टर्स ऐसे डिवाइड किए गए? सर उसका डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से शायद। डिफिकल्टी लेवल कैसे डिसाइड होता है? कोई पैमाना, कोई नापने का तरीका? आपको कुछ मुश्किल लग सकता है, मुझे कुछ मुश्किल लग सकता है, तो कैसे ये चीज सोची जाती है कि रेशियो तो हम 6th क्लास में पढ़ाएंगे या परसेंटेज तो 6th क्लास में पढ़ाएंगे? सर पता नहीं सर। ठीक है। सौम्या, अपने Yes. नाम का अर्थ बताइए। That means gentle. सौम्य means gentle. ठीक। अच्छा, एक 1st क्लास का बच्चा है और एक 5th क्लास का बच्चा है, दोनों का बौद्धिक स्तर में भी अंतर है, तो उन दोनों के पढ़ाने, आपको दोनों बच्चे पढ़ाने पड़ गए हैं, तो कैसे 1st क्लास के बच्चे को और 5वीं क्लास का जो बच्चा है, मतलब कैसे वो करो, तालमेल बैठाओगे? मतलब एक ही क्लास में। एक ही क्लास में कैसे होंगे? 1st क्लास तो अलग है, 5th अलग है, अब पढ़ाने वाली आप ही हो, है ना? तो जो 1st क्लास का बच्चा है उसका मेंटल लेवल देखते हुए उसको किस तरह से उसको पढ़ाओगी? कौन सी टीचिंग एड का सहारा लोगी? और 5वीं क्लास के बच्चे के लिए कौन सी टीचिंग है? टीचिंग एड। बुक, ब्लैक बोर्ड, गेम्स, पजल्स, कुछ तो है ना? हाँ जी। मैम जो 1st क्लास का बच्चा होगा उसको तो हम एक्टिविटी में इन्वॉल्व करके सिखा हाँ। सकते हैं, जिससे वो एंगेज भी रहेगा, क्योंकि छोटे बच्चों का कंसंट्रेशन हाँ। लो ही होता है, जिससे वो एंगेज भी रहेगा, उसको इंटरेस्टिंग भी लगे। हम्म, और 5th क्लास के बच्चे को एक्टिविटी के साथ साथ थोड़ा कॉन्सेप्ट पे फोकस करके, मतलब एक्टिविटी और कॉन्सेप्ट दोनों पे ही जोर रहेगा उस पे, लेकिन जो 1st क्लास का बच्चा होगा उसको एक्टिविटी पे ज्यादा जोर देंगे, जिससे कि 1st क्लास का जो बच्चा है वो उसको मतलब देखकर सिखाने की कोशिश करेंगे, किया जा सकता है, और 5वीं क्लास के बच्चे को करके सिखाने की कोशिश की जा सकती है। ओके है ना? ओके। अच्छा, एक ये है कि बच्चा स्कूल में आया है
और आते ही रोने लगता है, मेरे पेट में दर्द है, मुझे भूख लग रही है, जो अक्सर झूठा भी होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे आप? उसे घर भेज देंगे या उसकी भूख को शांत करने का प्रयास करेंगी या नहीं। प्रिंसिपल मैम के पास जाएंगी? नहीं मैम, घर तो नहीं भेजेंगे, पहले उससे पूछेंगे कि आप क्यों रो रहे हो, क्या हो गया, और हो सकेगा तो उसको भूख लग रही होगी तो कुछ खाने को दे देंगे, उसको पहले शांत करवाएंगे, उसके बाद अपनी क्लास कंटिन्यू, उसके एक्टिविटी में एंगेज कर लेंगे। एक्टिविटी में एंगेज करेंगे। और एक प्रश्न और इससे करते कि बच्चा आया है अपना बैग लेके, उसमें उसकी बुक्स है, पेंसिल है, और जब आप काम कराने लगे तो उसकी कॉपी खो गई, पेंसिल खो गई, वो ऐसे करके काम नहीं करता है, तब ऐसी स्थिति में क्या करोगी? वो जब बहाने करता है, बहाने बनाता है, और कभी कभी वास्तव में भी खो जाती है। दोनों ही स्थिति है, क्योंकि वो तो ढूंढने पे पता लगेगी ना सच्चाई क्या है। जी मैम, उसको हो सकता है एक्स्ट्रा मटेरियल अगर मेरे पास होगा तो मैं अपनी दे दूंगी कॉपी और पेन, और बोलूंगी कि काम करो, और तब भी वो अगर नहीं करेगा तो जानूंगी कि क्यों नहीं कर रहा है, क्यों मन नहीं लग रहा है पढ़ने में, उसके बाद उसको एंगेज कर सकते हैं क्लासरूम एक्टिविटीज में। ठीक है, अभी आपके डेमो वाले पार्ट पे चलते हैं, और आप का कोई फेवरेट सब्जेक्ट जो आप पढ़ाना चाहें? मैथ्स पढ़ा दूं? तो मैथ्स रहने देते। आप हमें ईवीएस का कोई टॉपिक पढ़ाइए। ईवीएस का। गुड मॉर्निंग क्लास, हाउ आर यू morning, ma'am. ऑल? बच्चों, अच्छा अब आप ये बताओ कि आपके आसपास आपको क्या क्या दिख रहा है? अच्छा अच्छा सर, ग्लास दिख रहा है मैम, ग्लास दिख रहा है, ग्लास, पेन दिख रहा पेन है, दीवार है, फ्लावर पॉट मैम है, आप दिख रहे Okay. हो। आप दिख रहे हो। ओके, हाँ। और कुछ मैडम दिख रहा आपका है? सूट बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू, आप भी बहुत अच्छे लग रहे हो बेटा। और आपको विंडो के बाहर कुछ दिख रहा है क्या? विंडो के बाहर क्या क्या दिख रहा है? मैम, पेड़, दूसरे स्टूडेंट्स खेल रहे हैं, खेल रहे बच्चे, हैं, पार्क दिख रहा है, पेड़ दिख रहा है, ओके ओके, आकाश भी दिख रहा है। ओके मैम, ओके बेटा। और मेरी बॉटल है, बॉटल के अंदर क्या है? खाली है तो खाली है, ओके। और आपकी बॉटल के अंदर क्या है? चाय। चाय, ओके ओके ओके। और आज बच्चे खाने में क्या क्या लाए हैं? टिफिन में क्या क्या है? मैं तो पराठा लाया। पराठा, वेरी गुड। मेरे तो रोजे चल रहे हैं, मैं तो आज नहीं लेके आया मैम। ओके 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 ओके। तो बच्चों मुझे ये बताओ कि ये जो ग्लास रखा है ये कहाँ से आता है? दुकान से। दुकान से आता है, ओके। और ये जो पेड़ है ये कहाँ से आता है? भगवान जी ने उगा दिया। भगवान जी ने उगा दिया, ओके। तो पेड़ को क्या हम लोग बना सकते हैं? हाँ मैम, पेपर मैंने पे तो बना सकते हैं। बनाते हैं हम। पेपर पे तो रियल बना में दे। तो नहीं बना सकते ना? नहीं, वो तो कोई भी नहीं बना सकता। वो तो कोई भी नहीं बना सकता। और ग्लास को? ग्लास को भी कोई नहीं बना सकता। कोई नहीं बना सकता, पक्का कोई नहीं बना सकता। अच्छा, आप बना सकते हो? हाँ बन सकता है, कैसे? मिट्टी से तो बन सकता है ना। कैसे? ओके, वो भी मैं आपको बाद में बताती हूँ, पहले हम टॉपिक पे चलते हैं। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे मैन मेड थिंग्स और नेचुरल थिंग्स। तो मैन मेड चीजें वो होती हैं जो मैन बनाता है, मैन मतलब कि इंसान बनाता है। जैसे आपने बताया अभी ग्लास हो गया, पॉट हो गया, ये सारी चीजें क्या होती हैं? मैन मेड होती हैं। और जो हमें बाहर दिख रहा है, जो हमें प्रकृति से मिलता है, वो नेचुरल थिंग्स होती हैं, उन्हें नेचुरल थिंग्स कहते हैं। तो सब अपनी अपनी कॉपी निकालो, हम लिस्ट पर आएंगे, जो जो आपको दिख रहा है सब बच्चे अपनी अपनी कॉपी में लिखेंगे और एक एक करके सब मुझे दिखाएंगे कि कौन सा क्या होता है। मैम जैसे हम ग्लास नहीं बना सकते तो क्या ये भी नेचुरल है? बाहर भी मुझे ग्लास दिख रहा है। ग्लास नहीं बना सकते मतलब? ये जो ग्लास है मुझे तो नहीं बनाना आता मैम, तो क्या ये आपको- मेरे लिए नेचुरल होगा? आपके लिए नेचुरल क्यों होगा? नहीं, ये तो आर्टिफिशियल ही होगा, मैन मेड ही होगा। आपको नहीं बनाना आता है, लेकिन आपके बड़े लोगों को तो बनाना आता है ना। तो और मैम पेड़ भी तो कोई इंसान ने आके बीज डाला होगा, पानी डाला होगा, तभी वहाँ पेड़ उगा होगा। वो भी मैन और मेड वो भी हो गया। Man-made हो गया। और वो बीज कहाँ से आया? बीज तो कहीं दूसरे से आया पेड़ से होगा। उस पेड़ को भी किसी ने उगाया होगा। नहीं नहीं बच्चों,
अच्छा, और वो दूसरा पेड़ कहाँ से आया होगा उसको फिर? भी किसी ने उगाया होगा, फिर वहां से आया होगा। बेटा हम भी तो नेचुरल ही है ना, फिर हम थोड़ी ना मैन मेड है, हम भी तो नेचुरल ही हुए। चलो ठीक है, बैठ जाओ डेमो वाला पार्ट। तो हाँ, फीडबैक में है कि आपकी प्रेजेंस बड़ी अच्छी लगी, थोड़ा Thank you, sir. खुशनुमा, थोड़ा आवाज को थोड़ा और तेज रखो, ओके थोड़ा मैंने भी आवाज लिखा में है मेरे को थोड़ा आवाज। ध्यान से ऐसे सुनने की धीरे कोशिश। होना कई बार ये दूसरे के माइंड में बैठा देता है कि आप कॉन्फिडेंट नहीं हो। नहीं, कॉन्फिडेंट अच्छा। हो आप, प्लेजेंट हो, लेकिन वॉइस को थोड़ा सा और लाउड हाँ करना। लाउड कर सकते ओके सर। दूसरा, जैसे मैं कर रही थी, शैतान बच्चों को अच्छे से समझ सकती हो, उन्हें समझा सकती हो, उनकी बातों पर मतलब अपने पढ़ाने के उसको रोका नहीं है, टॉपिक बताते तुमने गए, अच्छे से टॉपिक नहीं अच्छा पढ़ाया, वो उसमें रीजन क्या है कि तुमने एक ही पार्ट पकड़ लिया, हाँ, मैन मेड और नेचुरल का। हाँ। उसकी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे एक एस्पेक्ट तुम ऐसा बोल सकती हो जो ग्रो होता है। ये ग्लास कल बड़ा नहीं हो जाएगा, इतना ही रहेगा, लेकिन वो पेड़ जो हम बाहर देख रहे हैं वो बड़ा होगा। तो थिंग्स दैट ग्रो ऑन देयर ओन वो क्या है, नेचुरल है, और जो चीजें नहीं हो रही है तो ऐसा पॉइंट वो लेके आना है। सजीव बच्चा और तो निर्जीव पूछेगा, चीज बताएंगी यहाँ पर, उसका सजीव तो होंगी वो सब ग्रो करेंगी, निर्जीव नहीं करेंगी। बच्चे के तो डाउट ये को भी बता आपको कोई ऐसा सकते हैं। पॉइंट लेके आना पड़ेगा कि उसके मन शांत हो जाए। और छोटा बच्चा ऐसी चीजें पूछेगा ही कि बाहर रखा हुआ ग्लास क्या फिर नेचुरल हो गया मैम, ऐसी चीजें होती रहती हैं। तो डेमो में अगर आपका टॉपिक आप खुद चुन रहे हैं तो इट बेटर बी ज्यादा गुड हो। टीचर्स ने दिया होता है तो फिर भी चला लेते हैं कि चलो ये वाला पार्ट इनका तैयार नहीं होगा, बता नहीं पा रही है अभी टीचर। और दूसरा कि आपकी कुछ कुछ चीजों की ना नॉलेज जो है, मतलब पेडागोजी और ये टीचिंग एप्टीट्यूड वाले पार्ट पे नहीं है, वो थोड़ा सा मतलब हमें जो आज के प्रोज हैं वो तो तुम्हें पता है कि कंस्ट्रक्टिव अप्रोच हम यूज करें, पहले क्या होता था वो भी एक हमें पता होना चाहिए कि पहले वाली चीजें हमने क्यों छोड़ी है। 2005 एनसीएफ के हमने कौन से पॉइंट 2020 में स्किप कर दिए, वो हमें पता होना चाहिए। तो उससे पता रहता है कि सिस्टम में क्या बुरा था क्या सही था। ये है तुम्हारा क्या है कि तुम्हें नॉलेज सारी चीजों की है, लेकिन तुम उससे बोलने के अंदाज से कई बार ऐसा दिखा देती हो जैसे कि इसे अच्छे से नहीं पता है, बस वो बता रही है, लेकिन तुम्हें पता है, वो तुम्हें उसकी पूरी डेफिनेशन पता थी, सब कुछ पता था। तो कॉन्फिडेंट होके इधर उधर दाएं बाएं ना घुमा के, जैसे कंस्ट्रक्टिव अप्रोच तुम्हें पता है तो उसे दाएं बाएं ना घुमा के कट टू कट क्रिस्पली आप पॉइंट वाइज आगे रखो। Soumya, I asked you a question about reading newspapers. So instead of negating the answer and saying not really, you could have said कि I'm not well versed with it, but I was an avid reader. तो उसको थोड़ा सा compensate हम कर सकते हैं. And if it is coming from a language teacher, chances है कि वो आपसे newspaper की significance और importance के बारे में उसके around ही question पूछेंगे rather than current affairs. सो सौम्या, एक तो आपने अपने बायो में मुझे लगता है कि बहुत ही हैवी वर्ड्स डाल के कुछ लिख दिया, एंड यू डिड नॉट इवन नो कि व्हाट यू वांटेड टू डू विद दोज थिंग्स, बिकॉज बहुत क्लियरली दिख रहा था कि मैंने आपसे सवाल पूछा कि आप किन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते हो, तो ये आपने आंसर अभी यहाँ बैठे बैठे फ्रेम किया है, जबकि बायो में जो आंसर होना चाहिए वो वेल प्रिपेयर्ड है, लिखा है, इसका मतलब पहले से सोच के आए, उसका मतलब वो एक प्लान है जो आप लेके आए हो, वो प्लान हमें बताना है। तो व्हेन यू आर प्रेजेंटिंग योरसेल्फ, वन योर इंट्रोडक्शन, उसमें से क्वेश्चंस निकलेंगे, सो हर वर्ड को सोच समझ के वहां डालना, ठीक है, क्योंकि उसमें से वो आपको क्वेश्चन आपका मॉडरेट करेंगे, सो यू बेटर बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। नंबर 2, एक मैंने आपसे जो क्वेश्चन पूछा, आपने उसका जवाब मेरे को डायरेक्ट, जैसे सर ने भी बोला, डायरेक्ट देने की बजाय आपने कहानी बना दी कि मेरे में एक स्टूडेंट थी, वो मेरे कॉन्टैक्ट में है, वो अच्छे परिवार से नहीं आती तो मेरे को उसको पढ़ाना पड़ा। तो वो बताने के बजाय आप सीधा बोल सकती थी कि हमारे देश में सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है, तो मैं अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स को जो है एक्सेसिबल और अफोर्डेबल एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहती हूँ, नॉट जस्ट ऑफ द केवी स्कूल बट ऑल्सो आउटसाइड द प्रेमिसेस, मैं पूरे देश का वो करना चाहती हूँ, ये आप बोल सकती थी, है ना। तो थोड़ा सा जो है आंसर्स को सोच के आओ। आई थिंक आपकी नॉलेज बहुत अच्छी है, आई लव योर प्रेजेंस, आई लव व्हाट यू वेयरिंग, आई लव योर डिलीवरी, एवरीथिंग वाज आई थिंक इम्पेकेबल, बट देन थोड़ा सा प्रिपरेशन आप और अपने ऊपर करो, वो बेटर है। आई कांटेक्ट भी आपका अच्छा है, हाथों को थोड़ा ऐसे रखने के बजाय ऐसे, हाँ ऐसे आराम से, यूं यूं यूं, ये अच्छा नहीं है। ठीक है। बस वही जो एक मैंने बोला, मैं पॉइंट ये मैं भी बताना चाह रहा हूँ, जैसे आपने लिखा है आई एम डिटरमाइंड टुवर्ड्स व्हाट आई एम फॉर, तो मैं पूछूं कि क्या एम है आपका, अब आप ये नहीं कह सकते कि सर 30 सेकंड दीजिए मैं सोच के बताती हूँ।
इस पॉइंट के लिए नहीं कह सकते, नॉर्मली आप कह सकते हो, कुछ इन जनरल कोई डिफिकल्ट बात आ गई उसके लिए कह सकते हो, लेकिन जो चीजें आपने ही लिखी है उनके लिए टाइम ले रहे हो तो फिर हमें लगेगा कि जैसे इतने भारी वर्ड की गई है, सिर्फ हमें इम्प्रेस करने के लिए तो ये वर्ड नहीं बोले जा रहे, वो हो जाता ओके सर। तो लगना चाहिए कि नेचुरल है। आप कुछ पूछना चाहो तो पूछ सकती हो। सर और कुछ? नहीं, हमने तो सब कुछ बता ही दिया। आपको कोई पॉइंट लग रहा है कि ये अंदर आपने कुछ गलती की हो, हमें नहीं, ना वो दिखी हो? डेमो का तो मतलब तो हाँ। मतलब ये पता भी ही नहीं समझ था। के जाओ, बिकॉज अब पीआरटी के लिए अप्लाई कर रहे हो, इसका मतलब हर सब्जेक्ट में से एक एक टॉपिक अपना प्रिपेयर करके जाओ पहले से। हाँ जी। मैथ्स मेरा फेवरेट है तो मैं मैथ्स प्रिपेयर कर गई, ऐसे नहीं चलेगा। और वो कई बार ये होगा कि आपसे पूछेंगे आपका और पीआरडी के लिए तो किसी भी सब्जेक्ट से पूछ सकते हैं। और पूछ के फेवरेट क्या और मना कर देंगे, उससे पता चल जाएगा आपकी स्ट्रेंथ क्या है, फिर आपकी वीकनेस की तरफ जाएंगे। तो ये चीजें होंगी, बी प्रिपेयर्ड। ओके, ऑल द बेस्ट। All the थैंक यू, best. ठीक है। थैंक यू।